Good morning, all my dear student standard 11, chapter 10, straight line. Chapter 10, straight line. For our exercise 10.2, different type of lines may be passing through the Cartesian plane. Equation of line parallel to or perpendicular to x dash axis, x is equal to plus minus e. A line equation of line perpendicular to y dash axis parallel to x dash axis, y equal to plus minus e. Equation of line passing through 2 points, y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. Equation of line slope intercept form. If y-axis will be the slope, y-axis intersect at distance c, y equal to mx plus c. Second, if c is equal to 0, y equal to mx, a line passing through the origin. Equation of line intercept y-axis if intersect x-axis. Equation of line intersect at x-axis b and given slope means ये a line intersect d given slope, तो y equal to m x minus this equation. For examples, whose equation of line tan theta? Example 9. Included on the line y-axis intercept minus 3 and x-axis intercept 4. Means theta दिया है tan 1 by 2, मतलब स्लोप दे दिया है, स्लोप एंड गिवन y-axis इंटरसेप्ट c की वैल्यू दिया है -3/2 ओके tan थीटा y-axis फार्मूला y equal to mx plus c, y equal to m value 1/2 x minus 3/2, 2 से multiply 2y equal to x minus 3 means x minus 2y minus 3 equal to 0. The equation of intercept y-axis. Second, same slope x-axis intersect d equal to 4. फार्मूला y equal to m, अगर x एक्सिस इंटरसेक्ट है तो दिस फार्मूला x minus 1/2 x minus 4, 2y equal to x minus 4, x minus 2y minus 4 equal to 0. This is if given x axis intersect, now use the formula y equal to mx minus 1. If given y axis intersect, y equal to mx plus c. आप ध्यान देना होगा कि इंटरसेक्ट
इंटरसेप्ट x एक्सिस पे है, इंटरसेप्ट y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी हो 4 5 नंबर, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट का स्लोप दिया होगा, स्लोप पॉइंट एक गिवन पॉइंट फा मीन्स ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन का इक्वेशन बनाना है, स्लोप दिया है पॉइंट x1 y1 तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 एंड x माइनस x। फॉर एग्जाम्पल इफ स्लोप n इक्वल टू -1/3 3 एंड 4, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया कि स्लोप -1/3 है, पॉइंट गिवन 3 एंड 4 तो y माइनस 4 सीधे फार्मूले में यूज करो, -1/3 स्लोप आया x माइनस 3y -12 माइनस x प्लस 3, x इधर आएगा, x प्लस 3y -12 minus 3 equals to 0. This equation of line is the name of equation of line आ गई हमारे पास। इसका नेम क्या हो जाएगा, x plus 3y minus 15 equal to 0. Similarly, you solve theta equal to 135 degree, point A given -1 -5. Second, tan theta equal to 4/5, point A given 0/3. Third question, n equal to -1, A equal to 5 - 2. Okay, solve this question, 3 questions. Here slope point आपको पहचान करना पड़ेगा, स्लोप है पॉइंट, इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट 2 दिया है तो फार्मूला यूज कर देंगे, y एक्सिस इंटरसेप्ट एंड स्लोप दिस y इक्वल टू mx प्लस x एक्सिस इंटरसेप्ट d स्लोप दिस तो y इक्वल टू mx माइनस d यूज कर देंगे। ओके, सिक्स नंबर, this exercise is most important. 6 number, equation of line intercept form means आप देखो a line passing through any two axes, ये तो y and y dash, x dash and x dash, कहीं से भी ये लाइन पास हो रही है, ये x एक्सिस और y एक्सिस को एनीवे इधर से भी जा सकती है, इधर से कहीं से x एक्सिस y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। दिस कोऑर्डिनेट इक्वल टू a0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 d। कोऑर्डिनेट मान लो x एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर, y एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट करती है, तो कोऑर्डिनेट ले लिया a0 एंड 0। अब पॉइंट की एरिया हो xy, कहीं पे भी xy है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, कैसे फार्मूला आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, तो यही यूज करेंगे फार्मूला बनाने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन है, पहला हमारे पास ये है a0 एंड b0। चलो y माइनस y1, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x। एक बार आप फार्मूला वेरीफाई कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में फार्मूला यूज करें।
y माइनस 0 तो y बचेगा, y2 b माइनस 0, x माइनस x1 a एंड x2 0 माइनस 0. ओके, here y by b equal to x upon minus a plus 1. इसको इधर लेके चले आओ, x by a plus y by b equal to 1. in the formula of minus b इधर आ गया. शुरू इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फ्रॉम इंटरसेप्ट. अब क्वेश्चन क्या दिया है? 3 5 3 0, x एक्सिस इंटरसेप्ट 3, y एक्सिस इंटरसेप्ट 4. ऐसा क्वेश्चन देगा कि x एक्सिस इंटरसेप्ट 3, y एक्सिस इंटरसेप्ट 4. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. सीधा आपको फार्मूला यूज कर देना है. x by 3 y by 4 equal to 1, 4x plus 3y equal to 12. इक्वेशन बन गया हमारे पास -12 जी. ओके, तो आपको ये वेरीफाई है. यहाँ फार्मूला ही आप सॉल्व करना है. यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन देता है. पहला क्वेश्चन ये देगा आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस इंटरसेप्ट -5, y एक्सिस इंटरसेप्ट -2. सेकेंड, x एक्सिस इंटरसेप्ट 8, y एक्सिस इंटरसेप्ट -2. बेटा आपको ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ लाइन बना देंगे. सेकेंड टाइप क्वेश्चन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन देगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड x एक्सिस इंटरसेप्ट है, y एक्सिस इंटरसेप्ट. 12x plus 15y minus 3 equal to 0. ऐसा बोला. दिस इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड द x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट. तो 12x plus 15y कांस्टेंट राइट साइड ले जाएंगे, फिर कांस्टेंट को डिवीजन कर देंगे. 12x by 3, 15y by 3 इधर 1 हो गया. 12 को नीचे ले आएंगे. यस, 3 by 12 plus y 3 by 15 equal to 1 by 4 1 by 5. ये क्वेश्चन हो गया x अपॉन 1 by 4 y अपॉन 1 by 5 equal to 1. कंपेरिजन कर दो. x by 3 plus y by b equal to 1. तो x एक्सिस इंटरसेप्ट 1 by 4, y एक्सिस इंटरसेप्ट 1 by 5. क्लियर हो गया? ओके. इसी तरह एनी हाउ क्वेश्चंस में भी चेंज. फर्स्ट कांस्टेंट ले जाएंगे. कांस्टेंट राइट साइड में जो भी है प्लस माइनस. अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में प्लस है, मान लो कांस्टेंट प्लस है, तो माइनस से डिवीजन कर देंगे. मींस राइट साइड में हमारा 1 ही होना चाहिए और x के साथ कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. जैसे 2x plus 3y plus 4 ऐसा क्वेश्चन है. तो आप क्या करें? 2x plus 3y minus 4. फिर -4 से, क्योंकि इधर 1 रखना ही है, 2x अपॉन -4 प्लस 3y अपॉन -4. ये हो जाएगा x अपॉन -4 तो इसके नीचे प्लस y अपॉन -4 3. तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन -4/3 कंपेरिजन कर लो तो x एक्सिस पे आ जाएगा -2, y एक्सिस पे आ जाएगा -4/3. तो सेकेंड टाइप क्वेश्चंस, इफ यू गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द x एक्सिस इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट. तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप इसमें से x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट फाइंड करें. 7x plus 5y equal to 15. दूसरा
x प्लस √3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड 2x माइनस 5y प्लस 3। ओके, एग्जाम्पल 10 सॉल्व कर लेना और ये मैंने यहाँ जो क्वेश्चन दिया उसको last equation of life is most important. His name says normal था। नॉर्मल सबको आपको याद करना, नॉर्मल था। नॉर्मल था सेकेंड नेम पी अल्फा था। इसका सेकेंड नेम क्या है? पी अल्फा। पी मीन्स परपेंडिकुलर। पी मीन्स क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लेंथ पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, जो हमारी लाइन है उस पर जो पी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसी को फाइंड आउट करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। ये लाइन का इक्वेशन, कंडीशन क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर है ओपी, पी ओएम, ओएम गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओएम इक्वल टू पी, ये हमारा गिवन है। अल्फा मीन्स नाउ परपेंडिकुलर लाइन मेक एंगल x एक्सिस अल्फा। ये देखो अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मेक एंगल अल्फा फ्रॉम x एक्सिस। सोचो, हमें सिर्फ दो चीज दिया है, ये लाइन है, फाइंड इक्वेशन करना है। इसके लिए गिवन पार्ट हमारे पास दो है कि इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई हमें पी पता है, मालूम 5 6 7 एनीहाउ दिस ओएम मेक एंगल x एक्सिस अल्फा। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अब बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? वो है एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए, या दो पॉइंट मिल जाए, इंटरसेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, या तो दो कोऑर्डिनेट मिल जाए। जितने हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बताया उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? किसी भी लाइन को पास करने के लिए या तो स्लोप फाइंड हो लाइन का,
सेकेंड 2 पॉइंट में जाएगा, इंटरसेप्ट का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये लाइन ऊंची से जा रही है। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ यम, कोऑर्डिनेट ऑफ यम फाइंड आउट। ये कैसे निकालेंगे? ये मान लो यह है, ये मान लो है। कोऑर्डिनेट ऑफ एम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट आप साइन अल्फा, पहला हम क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ग हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ एम, पहले हम क्या लेंगे? साइन अल्फा, ये काश में साइन बाद में, साइन अल्फा, साइन अल्फा मींस क्या बात है, काश cos alpha means adjacent upon hypotenuse, means OL upon hypotenuse B है। ये भी है, ये तो OL means x axis, P cos alpha, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया P cos alpha। सेकेंड sin alpha, sin alpha means ML upon P, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ML की वैल्यू मिल गई हमको P sin alpha, ये लो कोऑर्डिनेट मिल गए y एक्सिस P sin alpha। ये आप ध्यान से देखिए मैं इसको रख रहा हूं। सेकंड थिंग, लाइन here पे भी कोऑर्डिनेट and find out P cos alpha and P sin alpha. Find the slope of line. Find the slope of line. Find slope of line OM. पहले हम OM का फाइंड करेंगे। O कोऑर्डिनेट 0 and 0, x1 y1 स्लोप m, y2 minus y1 means p cos alpha minus 0 p sin alpha, स्लोप आ गया हमारे पास sin alpha cos alpha। ये वैल्यू आ गई, मैंने गलत y2 की वैल्यू p sin alpha, p sin alpha minus 0 y2 minus y1 P cos alpha minus 0 P कैंसर tan alpha। ये किसका स्लोप हुआ? एक एक चीज आप ध्यान से देखो। दिस स्लोप इज OM, और आपको पता है OM परपेंडिकुलर लाइन L, ये परपेंडिकुलर वैल्यू होता है, नॉर्मल फॉर्म परपेंडिकुलर मींस OM परपेंडिकुलर L, तो स्लोप ऑफ L क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ L m1 m2 equal to -1, तो here m1 है, ये स्लोप ऑफ OM, तो m2 equal to -1 upon m1 तो -1 upon tan alpha means minus cot alpha। इस लाइन का स्लोप मिल चुका है हमको माइनस cot alpha m2। देखो मैंने क्या किया? फर्स्ट फाइंड कोऑर्डिनेट m cos alpha sin alpha p cos alpha p sin alpha, सेकंड फाइंड स्लोप OM y2 minus y1 x2 minus x1, OM perpendicular L m1 m2 equal to -1, find slope of line L। ओके, अब आपको मिल चुका है लाइन L का इक्वेशन कैसे फाइंड होता है? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, कैसा है? पॉइंट स्लोप। अब आप फाइंड आउट करें इक्वेशन ऑफ लाइन L गिवन, क्या मिला हमको? पॉइंट कौन से मिले? P cos alpha है, P sin alpha एंड स्लोप कौन है? M की वैल्यू माइनस cot alpha
नाउ दिस इज x1 y। फार्मूला कौन सा फार्मूला बेटा? पॉइंट स्लोप y माइनस y1 and x minus x2. Y minus y1 means p sin alpha and m means minus cot alpha cos alpha by sin alpha. X minus p cos alpha. Okay? Cross multiplication y sin alpha minus p sin square alpha minus x cos alpha माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर। इसको इधर लिखो y sin अल्फा प्लस x cos अल्फा इक्वल टू p कॉमन ले लो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर। इसको अरेंज कर दो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगी। दिस इक्वेशन इज द अल्फा p